Assalamu alaikum and welcome everyone. This is a webinar on cyber harassment under the shadow of Corona, Incidents Control and Punishment. It's being organized by the National Initiative Against Organized Crime, Pakistan. And our organization works on issues of organized crime in the country. And this particular discussion has come about from a report that the Digital Rights Foundation recently issued, which showed that during the period of the lockdown, cyber harassment reports had increased by 189%. So my name is Fasi Zaka. I'm moderating the discussion today on the behalf of NEOC. And we are a small group of independent professionals who are trying to build a community resilience against organized crime networks. Our organization is also monitoring on a weekly basis the situation of crime during the COVID-19 outbreak. It's called the Corona Crime Watch, and cybercrime is an area of concern for us. Today's roundtable focuses on cyber harassment during the pandemic. We have a panel of experts and concerned citizens who are raising their voice against this particular issue. And we know that most of the victims are women. So I'd just like to introduce our panel today. Our guest of honor is Ehsan Sadiq. He is the Additional Director General of the Cybercrime Wing of the FIA. So we're very grateful to have him. We're also grateful to have Amar Jafri Saab, who is the Director General, the Center of Information Technology in Pakistan, and Faria Aziz, who's the co-founder of Bolubi. She's a journalist. Nigat Dad, who's Executive Director of the Digital Rights Foundation, and she's now also got positions on Facebook and the Tor Project. So we welcome all of you, and we're very grateful for you having taken out the time for this. Very quickly, I'm going to ask a series of questions. We're going to try to keep it to 40 minutes. Any questions that we get from people watching this particular session, we will pose them to you in the last 15 minutes, and in the last 5 minutes, we'll ask all of you if you'd like to give any last words on issues that we may not have touched upon during our discussion. So Ehsan Sadiq Saab, the first question I thought I'd quickly ask you is cyber harassment kya hota hai? और किस पॉइंट पे, किस थ्रेशोल्ड पे एफआईए एक्शन लेती है इसके खिलाफ? Firstly, thank you very much. First of all, let me compliment National Initiative on Organized Crime and yourself and Tarak Hosa Sahab for bringing up this very important issue. Unfortunately, as you mentioned in your intro, the magnitude of problem is probably very high, but the attention that we are paying is very little. So I'm also privileged to be a co-panelist with persons like Umar Jafri Saab and Nigat and Fria, who are authorities and established names in their fields. So it's a real privilege for me to join this discussion. So thank you very much. Let me first of all start by saying that harassment itself has not been defined in PICA. There are 4 sections which basically we can say that we somehow, one way or the other, they deal with issues relating to harassment, and these are section 20, 21, 22, and 24. When we talk of harassment within cybercrime being, we club these sections, and sometimes we join them together for a particular offense. Otherwise, in particular cases, whatever the nature of the complaint is, we apply a particular section. And these are in themselves quite elaborate and comprehensive sections. Only in section 24, stalking, there is word harass used, but nowhere else. So there is again a moot point whether we should have some amendment in the law to broadly define the term as such, and then we can probably refer it to in the subsequent sections. Let me also add here that cybercrime being is very nascent organization. After 2016, when PICA was promulgated, till last year, during last 3 years, we had only 118 personnel in our wing, and most of them were forensic experts. So was the case with equipment.
in last 3 years, what has happened since the promulgation of PICA, that we have been inundated with complaints. In 2018, there were only 15,000 here. So you can well imagine that how big this problem is becoming. And within, can you hear me, please? We're losing you Can you hear slightly. me? Yes, we can hear you. Okay. Please. So we received 15,000 complaints in 2018, and in 2019 they jumped to 60,000, 4 times increase in number of complaints that we received. Can you hear me, Fasi sir? Yes, I can. Okay. So this year we are expecting even a bigger number. Within these complaints, almost 30 to 35% we can put in the bracket of what we call as harassment or issues related to harassment. So you can imagine that a big chunk of these pertain to harassment or issues pertaining to harassment. I'll explain subsequently what kind of mechanisms we have and what kind of resources we have and what are we doing to cope with this increasing challenge in terms of complaints and the expectation that the complainants have with us and what kind of capability that we have. Okay, thank you so much for that. We'll come back to this. So Amar Jafri Saab, you've worked in the government, you've worked at senior positions, आपने private sector में भी काम किया, you've worked in cyber security. एक जो general सवाल है वो ये है कि हुकूमत का एक responsibility है, लेकिन जो social media platforms है, क्या आपके ख्याल में इन्होंने इस issue को seriously इतना लिया है कि जो problems शायद platform के end पे भी solve हो सकते हैं, वो नहीं हो पा रहे और वो क्यों नहीं हो पा रहे? Firstly, I would like to thank National Institute on Organized Crime for inviting me to this panel discussion on a very, very vital topic. Very, very vital. So, to respond to your question, yes, private sector is doing a lot, but the issue is that the size and scope of the crime is getting so much big gradually, that I think even today, the efforts of civil society, private sector organizations, there are a lot of CSR initiatives in this, how to control this. To my understanding, cyber criminals are there for the same purpose we are here. It is their bread and butter now. There are 3 types of layers of internet. One is the internet that we see. Second is the deep, dark, which is again legal and people are there by just rescuing things. And then there's a deep dark, which is again, you can go there and you can see what they're doing. So I think the basic need is for the social media people. They're just seeing on the Facebook, just on some social media platforms like LinkedIn or something, Instagram. But I personally feel that these cyber criminals or these criminals who are engaged in real crime, what is a cyber crime? The crime being done using the internet is a cyber crime. So to my understanding, all efforts of social media need to be synchronized with the extent of the energies being put in by the criminals. You know what they are doing? They, for example, if somebody after some lady, he carries out a social engineering on it. What is her shopping pattern? Where should he go? And this information not locally, not available in the number of, because if you're using a smartphone and if you're using some apps in which you give your location so they can track. So using all the information about you, getting information about a person is not a difficult job if the person is using a smartphone. So they carry out a social engineering on the person, then they do it with a strategy. It is not a harassment of 10 years before where somebody sends a message or if you're disturbed, you can block the number. So it's a difficult situation. So my sincere guidance to the social media people are maybe that they should all join in together, have some research and development about the strategy, about the modus operandi of the cyber criminals, and they have different layers.
At times, for example, there's some funny chap and doing something. He is not a criminal. He's a student. He's just passing his time, or he's just trying to teach few people. So that category should be separate. They should be handled by some psychologist or some people. But the real criminals should be tracked down, and with the help of the FIA cybercrime wing, we should have a direct liaison with them. Because to my understanding, it is a national problem now, and it is bringing bad name to us. The report you are referring is a bad name for Pakistan. So I think the civil society, and I would like to add here that the police is the first responder of cybercrime. Yes, it is the mandate and cognizance, the responsibility of FIA. But again, everybody who faces some cybercrime goes to a police station. So to my understanding, police must be trained to the level that they should understand the real extent of the crime. Maybe I would like Ihsan Sahab to talk on this topic, how to bridge this gap. And third layer is the civil society. Again, civil society needs to be trained by police, by FIA people. So I think it should be a framework. It must be a strategy to do all these things. And today we are addressing a very serious problem. If we will not handle it, a lot of serious people, those who can contribute, don't join Facebook, don't join social media, because they know that once they are on Facebook, so it's not like this that we start training the civil society, don't use your privacy, your family picture. No, it's not like that. This is a small extent of the explanation. The bigger is how to observe the size and scope of the crime and make a framework, make a national strategy for handling this. Thank you. Thank you, Ji. And now, Nigat, so we're actually here because your report aapne shaya ki thi from the DRF, again a 189% increase in cyber harassment during the lockdown. Achha, I'm just going to ask you basic sawal to ye hai, what do you think created that surge in harassment? Mere zehn mein ek jo conjecture hai, wo I thought I'd just test with you. It's basically harassers who didn't have time before and now they all had time, or isi time pe aa gaye. What was the reason? Of course, there's also the psychological impact of being locked down. Log yehi keh rahe hain ki people who have abusive tendencies, those get magnified. What do you think caused this particular surge during this period? Thank you so much, Fasi, and my other fellow panelists. I think we cannot strongly say what was exactly the reason, but I think we can attribute to some of the reasons that why there was this huge surge of cyber harassment cases. So a little bit about the helpline just before I move ahead with what we basically think why it happened. So we have a cyber harassment helpline that we started in 2016. We only receive cases of online violence or cyber harassment by young women and girls. We ended up getting cases from everybody. It was very hard for us to refuse support to the young men or children who were facing violence and harassment and abuse and trolling online as well. So we started in 2016, and in 3 years, we have received 4,492 complaints until December 2019. अभी जो हम लोगों ने डेटा जो कंपेयर किया है, जो 189% ज़्यादा आया है, वो किया है जनवरी और फरवरी में, बिकॉज लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च में, और मार्च और अप्रैल के डेटा को जब हमने कंपेयर किया तो वो पिछले 2 महीने के डेटा से 189% ज़्यादा आया. हमें ये लगता है कि एक तो ये कि यस लॉकडाउन एंड लोगों के पास ज़्यादा एक तो वक्त होगा, बट एट द सेम टाइम एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज भी, बिकॉज एवरीवन मूव्ड ऑन टू ऑनलाइन स्पेसेस. सो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, बट लोग रिमोटली अपने काम की जगह को भी एक्सेस कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं. ऑफिस जो है, आपका ऑफिस वर्क जो है वो भी रिमोटली सब चल रहा है. तो काफी एकदम से जो सर्ज आए, 15% इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में जो है वो ज्यादा हुई ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो एक तो वो भी बात नजर आती है, लेकिन एक ये भी नजर आता है कि वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो जरूरी नहीं कि हर कोई रिमोटली काम कर सके. तो बहुत से लोगों की जो वर्क स्पेसेस हैं वो बंद हो गई, और दे एक्चुअली हैड नथिंग टू डू एट होम. तो हमें बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आई खवातीन की जिनमें उनका था कि अनसॉलिसिटेड कांटेक्ट
or especially from previous people, like people who were like exes or partners, या कोई ऐसे लोग जो कि 3-4 साल पहले जानते हो, और वो उस पुराने डेटा को लेकर के, इंटीमेट डेटा को लेकर के, तो वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गया. जो सबसे ज्यादा हमें कंप्लेंट्स आई वो 2 तरह की थी. एक ये ब्लैकमेलिंग ओवर इंटीमेट इमेजेस एंड वीडियोस, और जिसको वेस्ट में रिवेंज पॉर्न कहते हैं, हम NCII कहते हैं, एंड और दूसरा अनसॉलिसिटेड कांटेक्ट, मतलब मुसलसल कांटेक्ट किए जा रहे हैं और मना करने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे. तो वो ये 2 ऐसी किस्में थी जिसमें हमें लगा. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने मई में ये देखी कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग के केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा हुए. उसमें व्हाट्सएप हैकिंग जो है वो बहुत ज्यादा हुई. एहसास प्रोग्राम के हवाले से काफी ज्यादा कंप्लेंट्स में सर्ज आया. लेकिन जो साइबर हरासमेंट के हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो नॉन कॉन्सेंशुअल यूज ऑफ इंटीमेट इमेजेस और ब्लैकमेलिंग ओवर दोज इमेजेस जो हैं वो ज्यादा नजर आए. और उसकी रीजन हमें तो ये लगती है, हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, बट यही कि लॉकडाउन में चूंकि लोग घरों में थे और डिजिटल स्पेसेस में ज्यादा उनका एक्सेस था, तो मेन यही रीजन हमें लगती है. Thank you for that. That was really interesting. अच्छा फरिया, you're the co-founder of BoloBee. आपने बहुत सारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किया है, सपोर्ट किया है. अब एक जरा ब्रॉड सवाल, और वो ये है कि जो हमारा कानून है, एहसान साहब ने भी पीका का जिक्र किया, कहाँ हमारा कानून, इज इट गुड इन सपोर्टिंग विक्टिम्स या इन सपोर्टिंग complaints, and where is it that we can still improve, या where are there problems in other laws that may apply as well? थैंक यू फैसी. अगर सबको याद हो, जो ये बयानिया पीका के हवाले से बनाया गया था वो ये था कि एक तो हेट स्पीच और टेररिस्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, और दूसरा कि औरतों को ख़ास तौर पे हिरासा किया जाता है, इसलिए हमें कानून की ज़रूरत है. तो उस नैरेटिव को आगे लेके चले, उसमें जो जिस तरह से एहसान साहब ने भी मेंशन किया, जो सेक्शंस लाए गए 20, 21, 22, 24, ये खुसूसी तौर पे कुछ नौयत जो क्राइम्स की हम समझते हैं हरासमेंट, चाहे वो हरासमेंट का लफ्ज़ ना हो, लेकिन स्टॉकिंग हो गया, आपकी तस्वीरों को मॉर्फ करके इस्तेमाल करना, या रेपुटेशन को हार्म करना, प्राइवेसी ब्रीच करना, ये और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये तमाम चीज़ें इन शिकों के तहत इंट्रोड्यूस की गई. मसला ये है, जो हम उस वक्त भी पॉइंट आउट कर रहे थे और आज 4 साल बाद भी पॉइंट आउट कर रहे हैं इस कानून के हवाले से, कानून आने से कोई चीज़ रुक नहीं जाती. पहली बात, आप एक कानून का फ्रेमवर्क इसलिए फ्रेम करते हैं कि आपके पास एबिलिटी हो कि अगर कोई, पहले तो आप उस चीज़ को जुर्म करार दें, और जुर्म करार देने के बाद उसको प्रोसिक्यूट करने का तरीका आउटलाइन करें. मसला ये है कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं है, जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगी, लेकिन इसमें जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे इस कानून से लेके, चाहे वो सेक्शन 20 हो, जो हार्म टू रेप्यूटेशन, कहने को तो होता है कि अच्छा किसी औरत की डेफेमेशन या रेप्यूटेशन के हवाले से कोई बात की जाएगी तो वो कंप्लेन फाइल करेगी, तो एटलीस्ट कम से कम उस पर आप एक्ट कर सकेंगे. लेकिन हमने देखा है कि अभी हाल ही में इस जो सेक्शन का इत्तलाक है वो उन ख़वातीन के हवाले से हुआ है जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये कहा हो कि हम हरासा किया गया है, या जो कॉल आउट्स हम कहते हैं, और उनके खिलाफ डेफेमेशन की कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं FIA में, और FIA ने फिर उनको समन्स भेजे हैं या आगे वो बात पहुंची है. तो एक तो इसका ये मनफी इस्तेमाल जो हो रहा है. दूसरी चीज़, जब ख़वातीन या कोई भी कंप्लेन करता है तो उसका मैकेनिज्म या तो ये होता है कि आप ऑनलाइन NR3C की वेबसाइट पे जाके आप फाइल करेंगे, या फिर आप दफ्तर जाएंगे. उसमें मसला ये कि इनके जो वेबसाइट लिंक है वो अक्सर लोग कहते हैं कि काम ही नहीं करता, तो फिर आपको दफ्तर जाना पड़ता है. जो प्रॉब्लम ये है कि, और दूसरा जब केस बनता है, आपने फ़र्ज़ करें कि केस दर्ज भी कर लिया. मैं कराची में और मेरी जो तंजीम है, हम लोग ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं कि कोर्ट्स में पीका के केसेस कहाँ तक प्रोग्रेस किए हैं. एक अक्टूबर 2016 में ये कोई पहला केस होगा सेक्शन 21 का रजिस्टर्ड, उसमें अगर आप देखें तो वो आज तक कंक्लूड नहीं हुआ है. और वो कंक्लूड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो एक तसव्वुर है कि कोर्ट्स ही नहीं इन चीज़ों को आगे लेके चलते.
پیکا کے حوالے سے ہفتے میں پہلے ایک بار ہیئرنگز ہوتی تھیں, اب ہر ڈسٹرکٹ میں مخصوص دن, کراچی کی حد تک ہے کہ آپ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں مختلف ڈسٹرکٹس کی, ملٹیپل ٹائمز اے ویک. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز نہیں آتے ہیں, ان کے آئی اوز نہیں آتے ہیں, ایویڈنس نہیں جمع ہوتی ہے, فورینزک رپورٹس نہیں آتی ہیں, اور یہ آپ کیس ڈائریز اٹھا کر دیکھیں تو بیلیبل وارنٹس, نان بیلیبل وارنٹس پروسیکیوشن وٹنسز کے خلاف کئی بار نکالے گئے ہیں ججز کی طرف سے, میجسٹریٹس کی طرف سے, اس کے باوجود نہیں آتے. ایک جو لٹیگیشن کے حوالے سے آپ نے سوال کیا, ایک خاتون نے پھر ایف آئی اے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کیونکہ انہوں نے ان کی جو ایویڈنس فائل تھی وہ گما دی. ان کو تقریباً وہ کہاں کہاں نہیں گئی تھیں اس فائل کے, انہوں نے رپورٹ کہاں کہاں نہیں کیا, این سی ایچ آ گئیں, ایف آئی اے میں گئیں اور پارلیمنٹری کمیٹیز کو لکھا, پھر فائنلی ہائی کورٹ گئیں. ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کو ڈائریکشنز دی, انہوں نے بولا کہ ہم ڈھونڈ کے جمع کرا دیں گے, ٹرائل کورٹ میں کچھ جمع نہیں ہوا. دوبارہ ان کو اپلیکیشن موو کرنی پڑی سندھ ہائی کورٹ میں, دوبارہ وہ کیس کھلا, اس کے بعد جا کے وہ فائل وہاں پہ جمع کرائی گئی ہائی کورٹ میں. اس کے باوجود دوسری بار بھی ٹرائل کورٹ میں نہیں جمع کرائی گئی. آج تک اس کیس میں ایویڈنس کمپلیٹ نہیں کیا ایف آئی نے اپنی سائڈ سے. سو مسئلہ یہ ہے کہ قانون آ جانے سے کچھ نہیں صرف حل ہو جائے گا, اور جو یہ پروسیجرل ایشوز ہیں کہ جب آپ نے کون سے کیسز, یہ جو آپ کی سلیکٹیوٹی ہے یا پرائیورٹی ہے کہ ہم کس کو پرائیورٹائز کریں گے اور کس کو نہیں, اور پھر مس یوز, ہچکچاہٹ ہے تو کیوں ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے, یا ان کی جو پرائیویسی اور سیفٹی ہے وہ کس حد تک محفوظ ہوتی ہے جب وہ کمپلینٹس اور پرائیویٹ انفارمیشن دیتے ہیں, یا ان کو کیا اسسٹنس آگے سے ملتی ہے, یا رویہ کیا ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں فیکٹرز ہیں. اور پھر obviously جو دوسرا پہلو شاید اس سے انکنیکٹڈ ہے, لیکن پیکا کا جو اطلاق ہے ڈسیڈنٹس کے خلاف. ٹھیک, alright, so we'll come to احسان صادق صاحب. تو ایک ویسے this leads to the next question also. اگر 60,000 کیسز ہیں اینڈ ایک لمیٹڈ بینڈ وتھ ہے کام کرنے کا, بیکاز 60,000 از اے کیس فائل مور دین ایون دا پولیس کین ڈو, تو چوائس کیسے بنتی ہے ان کیسز میں, پرائیورٹائزیشن کیسی آتی ہے؟ جی اچھا فصیح صاحب, before I answer this your query, let me start with some of the points raised by my co-panelists. First of all, I appreciate and fully endorse what Amar Saab said. It has to be a collaborative effort, اور یہ صرف ایک legalistic یا اس کا criminalistic view نہیں لیا جا سکتا. So you have to engage civil society جیسے آپ بھی کر رہے ہیں. You have to co-opt other service providers as well. Maybe local police کو بھی کسی حد تک ہم نے loop میں لینا ہے. So there are stakeholders which are missing presently. تو ایک تو میں اس چیز کو fully endorse کرتا ہوں. Secondly, let me also add in to what Nigat said regarding the jump in the number of complaints. اب ایشو یہ ہے کہ جو ان کی ہیلپ لائن ہے وہ جو کہ پرٹیکولر ایک ایشو کو ڈیل کر رہی ہے, اور مے بی ٹرسٹ لیول بھی زیادہ, اور مے بی کہ جو نمبر ہیں ان کے ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر 1 سے 2 ہو جاتا ہے تو مے بی وہ 200% ہو گیا. So I don't know what exact number she has in terms of these complaints. Lekin to some extent I can say that during April we did see a rise in number of complaints or jo humne fir inquiries register kiye. Or as compared to preceding 6 months jo abhi January to June 2020 سے پہلے کے 6 مہینے ہیں تقریباً ڈبل ہم نے ان ایریاز میں ان 4 سیکشن میں انکوائریز کی ہیں, اور پرٹیکولرلی دی ہائیسٹ نمبر واز ان اپریل. اور اسی طرح آلموسٹ 3 ٹائم جو ہے وہ جو اسٹاکنگ کا سیکشن 24 ہے اس میں رائز آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ان 6 months میں. اٹ مے بی ایز آئی ارلیئر سیڈ کہ ڈیورنگ لاسٹ ایئر وی ہیڈ اے 4 times جمپ, مے بی اس کی کنٹینیوٹی ہے, اور مے بی it is attributed to lockdown کیونکہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, اور اسپیشلی ہم دیکھا ہے کہ مئی میں چونکہ رمضان تھا شاید probably it's presumably کیونکہ ہماری کوئی امپیریکل ایسا ایویڈنس نہیں ہے, بٹ آئی تھنک کہ وہ رمضان کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے وہاں ڈپ آیا ہے, اور اپریل میں ہائیسٹ نمبر ہے ڈیورنگ لاسٹ 6 months. تو جو کووڈ اور لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے تو ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ انڈورسز واٹ نگت سیڈ.
प्रिया ने बड़े pertinent question रेज किए हैं, and I think those pertain particularly to FIA. So let me answer them one by one. एक इशू तो ये है कि एक्सेस का, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो चीज़ है कि जो कंप्लेंट्स हैं उनको एक्सेस हो. तो हमने एक्सेस के मल्टीपल मैकेनिज्म दिए हैं. मे बी के इन सम इंस्टेंसेस शी इज राइट कि वहाँ पे शायद एक्सेस फंक्शनल नहीं है, एंड वी कैन लुक इनटू इट. लेकिन हमारी हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है, वेबसाइट है, ये पीएम के पोर्टल है, हमारी अपनी फेसबुक और ईमेल के एड्रेसेस दिए हुए हैं, हमारे जो 15 सर्कल्स हैं वो भी है, और हमने एक इसके ऊपर कैंपेन भी शुरू की है. पीटीए की हेल्प से हमने मैसेज भेजे हैं कि अगर आपको ये इशू है तो वो करें. तो यस, एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पर्टिकुलरली टू वीमेन. अभी 63% हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो आ रही हैं सिर्फ लाहौर से. अब इसका मतलब है कि जो बाकी लोग हैं या तो उनकी अवेयरनेस नहीं है या सोशल टैबूज हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और लेट मी आल्सो ऐड टू दिस के कंट्रेरी टू पब्लिक परसेप्शन के जी ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो कंप्लेनेंट्स होंगी, हम भी यही समझते थे, लेकिन व्हेन वी एनालाइज द डाटा तो उसमें देखा ये कि जो मेजॉरिटी इन कंप्लेंट्स में कंप्लेनेंट्स हैं, दे आर मेल्स. So again, it is not because they are the, in actual terms, the real victims. Maybe the access is issue, social taboos are issue, family के issues हैं, उनकी जो इसके साथ shame का element है या stigma का element है वो attached. So we'll have to look into all those issues which are to some extent beyond us and for other people like ones who are here. इसमें I just added these points कि they are noted somewhere. उसके ऊपर हमको अपना response जब shape करें तो because all people are very committed, genuine people who are interested in improving things. इसमें एक और जो issue है जो निगत ने फरिया ने raise किया है वो है हमारी investigation capacity के लिहाज से. अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक legal framework का भी issue है कि स्वाय जो सेक्शन 10 है और 21 है और 10, 21 और 22 दे आर नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल. बाकी सारे ऑफेंसेस जो हैं वो अवेलेबल भी हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल हैं एंड कंपाउंडेबल भी. अब इन सो मैनी केसेस, ये केसेस जब क्योंकि फैमिलीज के या जैसे निगत ने कहा एक्स के इश्यूज होते हैं तो, और फिर स्टिग्मा भी है, शेम भी है, डिफेमेशन भी है, तो दे गेट इवेंचुअली कंपाउंडेड. अब इंटरेस्टिंगली दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस अवेलेबल. जो आपने बात की कि दे आर लिंगरिंग ऑन, उसकी एक रीज़न ये है फरिया कि हमारे पास अमार साहब नोज बेटर कि ये जो इक्विपमेंट है फॉर फोरेंसिक एनालिसिस it is very expensive, and till today we didn't have adequate equipment in our labs. उसका result ये हुआ है कि there are long queues for getting those devices examined. उससे फिर ये सारा जो backlog है वो चलता आता है. In some particular cases may be कि वो issue हो कितने साल हो गए, लेकिन at least कोई हमारा जो है कि 4 to 6 months जो है वो backlog चलता है. अब हमने कोई आपने पहले बात की थी तो लेट मी आल्सो ऐड के कोई 253 मिलियन का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है फॉर प्रोविजन ऑफ मोर फोरेंसिक इक्विपमेंट. हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो टिल लास्ट ईयर ओनली 3 थे, बाकी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे. वी हैड गॉट सम इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम FIA. अब दिस ईयर वी एडेड अनदर 400. वी आर प्लानिंग टू गेट 200 more people in next 3 years. So hopefully we will be able to have enough capacity both in terms of human resource and the equipment to cope with this rising challenge. फिर हम उसकी जो capacity के issues हैं उसको भी address कर रहे हैं. We got National Police Academy to train these people. बाकी जो IT के लिहाज से ये लोग थे best qualified जो लोग हैं वो हमने लिए हैं. Now coming to your क्वेश्चन कि हम इसको कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि जैसे इन 56,000 कंप्लेंट्स लास्ट ईयर आई, ओनली 34% जो है वो हम रजिस्टर करके वेरीफाई करके उसको कर सकें.
तो अब कैपेसिटी का इशू है इसमें, तो उसमें वो है जिसमें बहुत ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इज टॉप मोस्ट इशू, क्योंकि सोशल इशू भी है, मॉरल इशू भी है, बड़ा हीनियस है इंटरनेशनली also when you will I think come on it later on. So Pakistan is one of the top countries from where this content is uploaded. तो इसके बाद जो प्राइवेसी के इश्यूज हैं, ये नॉन कंसेंसुअल शेयरिंग ऑफ डाटा है, इमेजेस हैं, इस तरह के जब ब्लैकमेलिंग है, हैरेसमेंट है, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में आते हैं. सो स्पेशली व्हेन दे आर फीमेल्स, तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि दे आर आवर प्रायोरिटी, और उनके केसेस पहली प्रायोरिटी पे हम करते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर दैट. अब अमार साहब, एक सवाल ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर वर्क इन FIA इन द इनिशियल डेज, एक सवाल ये भी है कि अगर कैपेसिटी का ये जेन्युइन एक इशू है, तो ये if there was to be more proactive investigation strategy जो आप बात कर रहे थे, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो, that this could also be solved at the level of the police, it doesn't have to fall back on just one national organization. क्या ये इसका एक पॉसिबिलिटी है, and if it is, तो अभी तक इसमें मूवमेंट क्यों नहीं हुई? देखिए जी, एक तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा साइबर क्राइम विंग को, अच्छा उन्होंने बताया है, लेकिन चूंकि उसका फाइनल हेड हूं, इसलिए उसके बारे में सुनकर तकलीफ में जरूर होती है, हमेशा रहेगी जरूर मैं जिंदा हूँ. पर ये जो आपने बात की, जो नेता आपने बात की, आप यकीन जाने मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बहुत दुनिया के साथ काम करता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं बेहतर काम कर रहे हैं. मैं आपको बताऊँ, आप जाए लंदन में जाएं, एक फॉरेंसिक चाहिए हो ना, अगर कोर्ट को 6 माह लेते हैं टाइम. जिस तरीके से फॉरेंसिक लैब बनी थी ये उससे अब कहीं बेहतर है. लेकिन बिल्कुल कहा सदी एहसान साहब ने, इतना महंगा इक्विपमेंट है, उसके लाइसेंस इतने महंगे हैं कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज. नेचुरली रिसोर्स का मसला है कि हर जगह है, हमारे हर जगह है. लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब ये सारा चीज क्लाउड पे चली गई. पहले हमें फिजिकली सेल फोन लाने पड़ते थे, कंप्यूटर लाने पड़ते थे, बड़े जहाँ रेड किया तो 50 कंप्यूटर आ गए, नया मसला था. अब चूंकि सब चीजें क्लाउड के ऊपर है, तो मैं चूंकि इनके अकेडमी जाता हूँ, बात भी करता हूँ उनके लोगों से, तो मुझे आइडिया है कि जिस तरीके से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है मैन पावर के हवाले से, अमेजिंग है. मैं इतना खुद खुश हुआ जब मुझे पता लगा 400 लोगों का नया बैच आया है. लेकिन जाहिर है ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस से आस्ते आस्ते चीजें ग्रो करेंगी. तो आप यकीन जाने कि मैं बहुत मुतमईन हूँ इस तरीके की चीजें चल रही हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं बेहतर चल रही है. जिस तरह बाकी मुल्क के इदारे चल रहे हैं, जाहिर है अगर उससे कंपेयर करूँ तो ये बहुत बेहतर है. लेकिन अगर आप इंटरनेशनली करें तो जरा थोड़ा कम लगता है. पहली बात है. दूसरी, मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा. यस, अब यकीन जाने अब इसके बाद गुजारा नहीं, ये कंप्लेंट्स बढ़ेंगी, ये हजारों लाखों में जाएंगी, इसलिए कि जो क्रिमिनल्स हैं, देखिए जो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं ना, तो लोगों का ध्यान इधर ही जाता है. अभी तो छोटी छोटी लोग बताते नहीं है कि जी वो इजी पैसे का फ्रॉड हो गया, एहसास प्रोग्राम का फ्रॉड हो गया. अभी तो हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये चीजें मजीद बढ़ेंगी. जो हमारी डिपेंडेंस बढ़ेगी साइबर की वर्ल्ड में, उतने ही क्राइम भी बढ़ेंगे. बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इसके लिए मैं अक्सर एक आर्गूमेंट देता हूँ कि साइबर क्राइम और चीज है, साइबर सिक्योरिटी और चीज. हम जितनी अपनी साइबर सिक्योरिटी बेहतर करेंगे उतनी साइबर क्राइम कम हो. क्योंकि निगहदार आप और फरिया, हम उस काम में जरा स्लो हैं थोड़े से, वो गवर्नमेंट का काम कभी भी नहीं रहता. साइबर सिक्योरिटी की बात करना हमारा काम है. लेट्स बी वेरी फ्रैंक विद यू. साइबर सिक्योरिटी मैं नहीं समझता कि साइबर क्राइम विंग के मैंडेट में आती है. यस, कोई छोटी मोटी सेक्शन जरूर होगा उनका, लेकिन शायद ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें आगे आना चाहिए. हमें सेमिनार्स, वर्कशॉप, हम लोगों को बताए तो सही है जुर्म है. बहुत मैं लोगों को जानता हूँ जब वो मुझे बताते कि मुझे पता ही नहीं है जुर्म था, पता ही नहीं है. तो मैं ये समझता हूँ जब तक हमारी नेशनल सर्ट नहीं बनेगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ नेशनल सर्ट का, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ FIA का, क्योंकि जो हमने बनाया है, वो जो CSAP बनाया है, साइबर सिक्योरिटी अलायंस ऑफ पाकिस्तान, उनमें इसके सब लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं. वो पहला मौका है कि उसके अंदर गवर्नमेंट सारे, मैं उसको हेड कर रहा हूँ, इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं. अब यकीन करें पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने FIA के जरिए राइट मालूमात देकर उस फोरम के जरिए हमने बिल्कुल बताया कि ये फ्रॉड हुआ, इसको पकड़े. मैं ये समझता हूँ निगाह आप भी और फरिया आप भी हमें उसमें ज्वाइन करें. वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, उसमें सबको शामिल किया आपने, जितने मुतल्लिका इदारे हैं उसमें 500 आदमी उस ग्रुप के अंदर. जब तक हम गवर्नमेंट की मदद को आगे नहीं आएंगे, बड़ा आसान काम है बैठ के टीवी चैनल के ऊपर बात करना, बड़ा अच्छा लगता है, कोई फायदा नहीं है उसका.
जब तक हम मदद को नहीं आएंगे। ये हमारे इदारे हैं, हमें इनको प्रोटेक्ट, हाँ जहां पे ये वो करेंगे कि जो इनको नहीं करना चाहिए, हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और चॉइस ऑफ वर्ड अच्छा होगा तो ये सुनेंगे हमारी बात, सच्ची बात है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ बैलेंस करने की, क्योंकि इनके साथ रहा हूँ, बड़ा अर्सा रहा हूँ, जिंदगी का अर्सा गुजारा है, अब आप लोगों के साथ हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा इस हवाले से कि जब तक आप FIA की फोरेंसिक कैपेबिलिटी को फास्ट नहीं करें, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानती कोई बात सिवाय इसके कि आप प्रूव करें जा। उसे प्रूव करने के लिए जो करंट रिसोर्सेज हैं बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स इनके पास आ गई है। अब क्या तरीका होगा कि हम आवाज बुलंद करें कि जी इनको आप रिसोर्स प्रोवाइड करें। जब तक इनके पास रिसोर्सेज नहीं आते, एक तो मैं ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा एहसान साहब को कि जो पुलिस की जो कैपेसिटीज बिल्ड हो रही है, इनकी अपनी लैब्स बन रही हैं, जो हमारी प्रोविजनल लैब्स बन रही हैं, उससे कोई ऐसा मॉडल तैयार हो उसके अंदर, क्योंकि मैं एक गैप देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनके सब अपने अपने एफर्ट्स हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, ये ज़्यादा आपस में कर सकते हैं। एक तो उस फ्रेमवर्क को करीब लाने की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए एडवोकेसी कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, इनके लोगों को बुला के बात कर सकते हैं, हमेशा डायलॉग से। मैं कभी भी फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को नेगेटिव नहीं लेता हूँ, ये हक है, और चीज़ें इंप्रूव भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से होती है। अगर हम यहाँ सारे बैठ की तारीफें करते क्या फ़ायदा होगा उसका? हम ज़रूर बताएं कि जी ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिग क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, वो असल तो बात वो है कि, तो मेरा ख्याल है इसको मैं इस नोट पर खत्म करूँगा आपके सवाल को कि हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। वो काम कैसे होगा, उसका ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बन चुकी हैं, स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। मैं नहीं देखता कि अभी तक हमने स्टैंडर्ड्स पे काम किया है। मुझे बताएं, आप में से कोई बता दे क्या हमारा कोई सोशल मीडिया स्टैंडर्ड है इसके, कोई डू एंड डू नॉट्स हैं इसके? फ्री फॉर ऑल छोड़ा हुआ है। कोई, मैं अक्सर कहता हूँ कि आदमी छत पे खड़ा है, गालियां निकाल रहा है, क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़? ना कोई जीना ऊपर जाने का, ना कुछ कर सकते हैं। एक साहब उठेंगे, फेक अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो किसी को कुछ कहना शुरू कर देंगे। अब हम सब ढूंढेंगे कौन है, क्या कर रहेगा उसने, कि रशिया के अंदर एक IP लेके उसने काम शुरू किया होगा। तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, हमें लोगों की चेज करने की जरूरत है, और मैं आखिरी बात ये मिलकर काम करना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं जरा निगत से एक सवाल करना चाहता हूँ। एक जो अमार साहब ने भी एक बात की थी, वो मुझे याद है आपकी एक DRF रिपोर्ट में भी था कि women are not aware कि cyber harassment is a crime. There's a certain percentage कि एक conception जब उनको हो तो then they're less likely also to tolerate it, maybe they're less likely to view it as part of the game के social media उस पे। तो एक तो ये है कि अगर that is the case, जैसे अमार साहब ने भी कहा था, how would you reach out to women to make that arguments that they should know about this? और दूसरा उसका एक सब्सिक्वेंट कंपोनेंट ये भी है कि इसका जो आपने केसेस भी देखे होंगे, इसका साइकोलॉजिकल टोल क्या होता है बीइंग अ विक्टिम ऑफ साइबर हरासमेंट। फर्स्टली एक तो ये कि मेरे ख्याल में 2016 के बाद कानून जब बना था उसके बाद, और इवन उससे पहले भी, जैसे प्रिया ने कहा कि एक अच्छी खासी एडवॉक्सी हुई उस कानून के हवाले से, जो ऐसी प्रोविजंस थी जो कि प्रोटेक्शंस को जो है उन पे कदगन लगाती हैं, तो उनके हवाले से डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की थी, अभी भी बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें हरासमेंट को भी कवर किया गया था, जो प्रोविजंस एहसान साहब ने भी बताई हैं। लेकिन और वहाँ पे अब आगाही काफ़ी ज़्यादा हुई थी कि अच्छा पाकिस्तान में एक कानून आ रहा है। अब चूंकि नैरेटिव ये था कि ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है, तो बहुत सी ख़वातीन को अंदाज़ा था कि अच्छा अब जो ऑनलाइन उनको रेप थ्रेट्स मिलते हैं या डेथ थ्रेट्स मिलते हैं या हरासमेंट होती है या ट्रोलिंग होती है या हेट स्पीच होती है, तो वो हमारा कोई कानून आएगा जिसमें हमें एक लीगल रेमेडी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आगाही नहीं है, आगाही काफी अरसे से हो भी रही है, बेशक वो बहुत कम लोगों तक महदूद है। ज्यादा अर्बन एरियाज में, शहरों में लोगों को ज्यादा पता है। 70% आबादी अगर देहातों में रहती है तो देहातों में तो मोबाइल फोन तो है, और वहाँ पे थैंक्स टू नेट न्यूट्रलिटी के जो प्रिंसिपल्स के खिलाफ हम लोग गए, एंड देन पीपल डू हैव एक्सेस टू फेसबुक ऑल्सो, जिनके पास टेलीनॉर के कनेक्शंस हैं, लेकिन वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी नहीं है, और वहाँ पे जो हरासमेंट होती है वहाँ पे लोगों को नहीं पता कि खवातीन को खास तौर पे कि अच्छा अगर मुझे इस तरह कोई हरास कर रहा है तो मैं किसको रीच आउट करूँ। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है
जो एहसान साहब भी शायद बात करेंगे कि अब रिसोर्सेज आके साइबर क्राइम विंग की ज्यादा होना शुरू हुई हैं. कानून हम पहले लेकर आ गए और काफी चीजों को हमने क्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन हम लोग वो आगाही और रिसोर्सेज नहीं फैला सके. तो हमें अगर इंटीरियर सिंध से या हमें सादकाबाद से या हमें कहीं से कोई कंप्लेंट अगर आती थी तो हम उन्हें कहते थे आपको साइबर क्राइम विंग आके रिपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन भी करते थे. वेरिफिकेशन के लिए साइबर क्राइम विंग हमेशा ऑफिस बुलाता है. तो अब एक बंदी अगर कहीं बैठी हुई है मुल्तान में, तो मुझे याद है कि हमने एक कंप्लेन से डील किया था. कंप्लेनेंट जो थी वो खातून थी, वो माजूर थी और वो एक वकील थी, और उनको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, बहुत हेट स्पीच उनके खिलाफ फैलाई जा रही थी. वो वहां से ट्रैवल करके लाहौर आई थी अपनी कंप्लेन जमा कराने. अनफॉर्चुनेटली बहुत से रिसोर्सेज की बात हो रही है तो वो उनकी कमी उस वक्त थी FIA के ऑफिस में. एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. जब वो पहुंची तो पता चला तीसरे माले पे है ऑफिस, तो वो और कोई लिफ्ट मौजूद नहीं थी. तो खैर एनीवेज साइबर क्राइम विंग ने उन्हें फैसिलिटेट किया. लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके दूर दराज इलाकों में आप आगाही फैला भी दें तो वहां पे लोग, फिर आप औरतों को क्या कहेंगे? जो औरतें अभी भी अपने घर वालों से, आदमियों से जो कि मेल मेंबर्स हैं, जो कि डोमिनेंट है अपने घर के मामला चलाने में, अगर उनसे वो बात नहीं डिस्कस कर सकती और तो उनको घर से तो निकलना पड़ेगा ना वो कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, तो वो क्या दूसरे शहरों में जाएंगे? अब साइबर क्राइमिंग ज्यादा हुए हैं, तादाद इनकी 15 से ज्यादा हुई है मेरा ख्याल में, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन को तो कवर नहीं करते. तो एक तो ये चीज कि आगाही आप फैला रहे हैं, तो फिर आप डिमांड को पूरी रखने के लिए भी आपके रिसोर्सेज होने चाहिए कि लोगों को पता है लेकिन फिर वो जाएंगे कहाँ पे. और दूसरी चीज ये कि जो मेंटल हेल्थ टॉल है उस पर इतनी ज्यादा बात नहीं होती. बहुत से केसेस जो ब्लैकमेलिंग के आते हैं, जो रिवेंज पॉर्न कह लें आप, या ब्लैकमेलिंग, ओवर इंटीमेट इमेजेस जो होता है, उसमें सबसे पहली जो हमें कॉल जब आती है तो एक तो बहुत पैनिक सिचुएशन में विक्टिम्स होती हैं, और दूसरा उनका ये होता है कि खुदा के लिए बस कुछ कर दें, अदब मेरे पास कोई चारा नहीं है. और वो अर्जेंट नेचर होती है उन कंप्लेंट्स की. उसमें आपका विक्टिम और सर्वाइवर इंतजार नहीं कर सकता कि वो पहले ऑनलाइन जाएं और फिर वो सबमिट कराएं, फिर उनको नंबर मिलेगा, फिर 2-3 हफ्ते में जब उनका नंबर आएगा तो FIA उन्हें कांटेक्ट करेगा. आई थिंक अब थोड़ा सिस्टम बेहतर होना शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी सिस्टम इक्वल नहीं है सारे साइबर क्राइम विंग्स में. एहसान साहब ने कहा 60% जो कंप्लेंट्स हैं वो लाहौर से आ रही हैं. हम लोग खुद लाहौर के साइबर क्राइम विंग से डील करते हैं, वो काफी एक्टिव है. दैट्स मच बेटर देन द वन इन अदर प्रोविंसेस. सो आई थिंक ये भी एक है कि आपके अगर साइबर क्राइम विंग्स 15 हैं या जितने भी हैं, अगर वो काम करें तो वो इक्वल लेवल पे काम करने चाहिए. और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कुछ गुजारिशात जो थी अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद जो है वो चौहान साहब हैं उनको भी दी, एंड ही वाज विलिंग कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. हम चाहते हैं क्योंकि आपकी हेल्पलाइन का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप हमें रेफर करें या हमें बताएं कि कौन सी ऐसी कमियां हैं जो हम अपने डिफरेंट साइबर क्राइम विंग्स में वो कर सकें. लेकिन काफी मसाइल हैं अभी प्रोसिक्यूशन लेवल पे, या जब जाते हैं विक्टिम्स तो कैसे बात की जाती है. अगर लाहौर का साइबर क्राइम विंग बेहतर है तो शायद कोयटा का उतना बेहतर ना हो. तो मेरा ख्याल में ये जरूरी है कि हम देखें कि पूरे साइबर क्राइम विंग्स जितने भी इस वक्त हैं उनमें किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, और प्रोसिक्यूटर से लेके आपके जितने भी स्टाफ है साइबर क्राइमिंग का, उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है. हम लोगों ने FIA के साथ काम किया है, UN वुमेन के साथ मिलकर, और हमने अभी जो 400 लोग हायर हुए थे पिछले 2 सालों में, हमने 200 लोगों की ट्रेनिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन में कराई है. सो एक विलिंगनेस तो है, लेकिन मुझे लगता है वो विलिंगनेस बदल जाती है जब लीडरशिप बदल जाती है, और उसको कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. तो कोलैबोरेशन के लिए हम लोग तो तैयार होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो कोलैबोरेशन फिर इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रस्ट तभी डेवलप कर पाएंगे अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ट्रस्ट का एक गैप है उसको ब्रिज कर सकें. Thank you for that. Ehsan Saab, before Nigat spoke, you wanted to make a comment. Ji, agar if you want to make that comment. Actually, I originally wanted to comment on what Amar Saab was saying, लेकिन चले अभी दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं. Thank you very much, Nigat, for appreciating at least some improvement that you have witnessed, and we are striving, in fact,
ये इम्प्रूवमेंट जो है वो सस्टेन रहे और इंशाल्लाह ये जो है वो एनकम्पेसिंग रहे, सिर्फ एक दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ना बने, बल्कि मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता था कि अगर इफ़ यू वांट टू गिव Priya a chance to speak first, then I can elaborate later on. और अगर आप अभी अलाउ करते हैं तो मैं अभी बात कर लेता हूँ दो तीन जो You can make it brief, then I'll get to Priya. Okay. एक तो प्रिया ने जो अर्लियर बात की, इंटीग्रिटी का इशू भी है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मोड है कि वो एक फाइल होती है और वो गुम गई है और ये केस डायरी है, इधर चली गई है उधर चली गई है. तो टू ओवरकम दिस, साइबर क्राइम इज द फर्स्ट यूनिट इन FIA which is going digital in terms of investigation record. और तो सारा हमारा जो FIR से लेके जो 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 हमारी केस डायरीज हैं, एविडेंस है, वो सारा हम एक केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेवलप किया है उस पे जा रहे हैं. सो इट इज़ ए ह्यूज इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रीवियस सिस्टम. तो वो इशू शायद एड्रेस हो जाएगा. दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी निगत ने की कि जी आउटरीच की बात है, अवेयरनेस की है, या उनकी एक्सेस की कैसे इम्प्रूव की जाए. आई थिंक प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंटिव साइड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब इतने लोगों को अगर आप 35% जो है इस वक्त फेसबुक यूजर्स हैं पाकिस्तान में जो 35 मिलियन के करीब. सो इट्स स्टिल इन टर्म्स ऑफ अदर एशियन कंट्रीज काफ़ी लोअर साइड पे. जब ये बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ेगा. जब अवेयरनेस आएगी तो शायद एक्सेस के भी लिए लोग आएंगे और उनको क्या रिस्पांस, उन्होंने कहा कि जब हमने लाभ ना लिया और रिस्पांस मैकेनिज्म उसका डिज़ाइन नहीं किया, तो दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग. तो एक तो उसको हम भी एड्रेस कर रहे हैं. वी आर कोलैबोरेटिंग विद यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, सिविल सोसाइटी टू रेज अवेयरनेस के इस चीज़ को कि उस स्टेज पे जाने से पहले ही खासकर फीमेल्स को अवेयरनेस हो कि वो हाउ टू प्रोटेक्ट देम, हाउ टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, हाउ टू प्रोटेक्ट देयर रिलेशनशिप्स, और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो सब्सिक्वेंटली दोज कैन बी एक्सप्लॉइटेड. तीसरी चीज़ ये है कि एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, और नितिन ने थोड़ा alluded to that, कि we have no other police organization has this facility. कि स्ट्रेस काउंसलर भी हमने इसमें रिक्रूट किए हैं, और जस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ ट्रामा, क्योंकि वो विक्टिम जो है वो मल्टीपल टाइम विक्टिमाइज हो रही है. तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने, और हेल्प डेस्क भी हमारे जो है वो ग्रेड 17 के लोग और मोस्टली फीमेल्स जो हैं उनसे हम जो है वो मैनेज कर रहे हैं. So these were a few points that I wanted to add. Thank you so much. जी फरिया, I just wanted to ask you a question. हम इतना कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ टर्म्स हैं इस पूरे डिबेट में जो somewhat शायद सिमिलर है, कभी ना कभी लोग इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करते हैं, but they're all distinct. तो अगर हम, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं ट्रोलिंग के बारे में, कंसर्टेड एक्शंस, ट्रेंड्स के बारे में, साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट, इन टर्म्स में फ़र्क क्या है? एंड अगेन अगर आपको इसमें, अगर आप एक लेंस अगेन प्रायोरिटाइजेशन का, इनमें से हाउ विच इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट इमिनेंट दैट वन नीड्स टू डील विद? Thank you, Fasi. I'll address your question, and if I can just make a few points based on जो बाकी speakers ने कहा. So colloquially हम जो terms इस्तेमाल करते हैं, या for example platform की policy में कोई हमें चीज़ नज़र आती है, तो ये terminology वहाँ पाई जाती है. For example trolling है, तो किसी के you know repeatedly stalking भी, कि repeatedly कोई act करना, या फिर आप you know target कर रहे हैं किसी को, जो आप हायर की, आई मीन ऑब्वियसली जिसके साथ जो भी हो रहा होता है, जिस नौयत का, उनके लिए तो वो हाई प्रायोरिटी होता है. लेकिन हमने देखा है हमारे कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पे जो तस्वीरों का शेयर होना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लिकेशंस होती हैं, या वीडियो का शेयर हो जाना या पब्लिकली डिसेमिनेट करना, या फिर जो ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट हम कहते हैं कि चाहे वो प्राइवेटली हो रही हो या पब्लिकली हो रही हो, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस और रैमिफिकेशंस हैं हमारे एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, वो खासे ज़्यादा होते हैं. सो कुछ स्पीच का तो आप काउंटर स्पीच के हवाले से कर सकते हैं. कोई ट्रोल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रोलिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो, वो एक गैर मुनासिब चीज़ हो सकती है, उससे आपको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो कानून के ज़ुमरे में हो. दूसरी चीज़ें फिर इन तमाम
टर्म्स को कानून में वो कैसे फिट होती हैं, क्योंकि कानून की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है. तो बहुत सारे एक्ट्स तो आप कहीं ना कहीं मॉर्फ्ड इमेज में फिट कर लेंगे जो 21 में आएगा, हार्म टू रेप्यूटेशन या प्राइवेसी में फिट कर लेंगे जो 20 में है, या जो स्टॉकिंग का क्लॉज है उसमें कुछ चीज़ें कि अगर किसी ने बगैर कंसेंट वीडियो वगैरह, तो कुछ तो डेफिनेशंस मौजूद हैं. और इन तमाम जो कोलोकियल टर्म्स हैं और जो हम एक समझते हैं कि इश्यूज हैं, वो हम उसमें फिट कर सकते हैं. जहाँ तक बात जो बाकी पैनलिस्ट ने भी कही और जो शुरू में आई थी कि प्रायोरिटी, उसमें भी देखिए हम ये बात हम सेफ्टी सेशंस भी करते हैं बेतहाशा बच्चों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, खवातीन के साथ, कि आप वो क्या मेजर्स हैं जो लें ताकि आपकी बेसिक सेफ्टी तो इंश्योर हो. आप अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, ईमेल पासवर्ड्स मुख्तलिफ रखें, बहुत सारी चीज़ें जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो कि हर सिटीजन को एम्प्लॉय करने चाहिए ताकि एक बेसिक ब्रीच की वजह इतनी ना बन जाए कि आपको कानून का सहारा लेना पड़े, और हर चीज़ के लिए लेना भी नहीं पड़ता. लेकिन और यहाँ पे हमारी कोलैबोरेशन ज़रूर है. हम इंटरैक्ट करते हैं FIA के साथ भी, या PTA और FIA जो पब्लिक पार्टनरशिप हमने तजवीज़ इनिशियली दी थी कि आप फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम करें. FIA के दफ्तर या PTA के दफ्तर जिस तरह से अभी वो मौजूद है, मुश्किल होता है लोगों को जाना. वहाँ पे कोई जाए, आप उनको हेल्प करते हैं, शायद कम्युनिटी गाइडलाइंस के ज़रिए वो चीज़ हल हो जाए, आपको कानून तक का सहारा लेना ही नहीं पड़े, आप वो तमाम चीज़ें भी कर लें. बट द अदर इशू ऑल्सो इज के कैपेसिटी की जो बात कर रहे हैं ना विल की, वो हमें नजर आता है कि एक फर्क है. यहाँ पे तो हमारी कोलैबोरेशन बनती है, लेकिन दूसरी तरफ जब स्टेट कोई मुकदमा कायम करती है FIA के जरिए, तो उनकी तो फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी फौरन आ जाती हैं, लेकिन जो 4 साल या ETO के वक्त से केसेस चल रहे हैं उनमें नहीं आती. फोरेंसिक कैपेबिलिटी जरूर हमें डेवलप करने की जरूरत है. और ये पीका के वक्त भी था, ये कोताही थी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान की कि आपने एक लॉ रश कर दिया, लेकिन जो मैकेनिज्म्स थे ना, आपने फोरेंसिक लैब देखी, रूल्स आए तो 2 साल बाद आए इन्वेस्टिगेशन के. ये तमाम चीजें इन टैंडम होने की जरूरत है. दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं, जो कि होना भी चाहिए, कि इन सिटीजन्स को जो चीजें अफेक्ट करती हैं, हम मिल के तंजीमें और सिटीजन्स हेल्प आउट करें. तो जो मुकदमे कायम किए जाते हैं जिसमें हमारा ध्यान फिर बढ़ जाता है कि हम जाके बेल कराएं, फिर सर्च एंड सीजर ऑर्डर्स जो हैं वो क्वॉश कराएं, FIR जो कट जाती हैं सहाफ़ियों पे, सिटीजन्स पे, हमारी तवज्जो तो वहाँ पे भी जाती है. तो यहाँ तो विल बड़ी नजर आती है, नॉन कॉग्निजेबल सेक्शंस में भी FIRs हो जाती हैं, लेकिन यहाँ खवातीन की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो वहाँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में हम फंस जाते हैं. तो ये भी हमने फर्क देखा है कि चाहे कॉग्निजेबल पावर्स हों भी, वहाँ पे भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, और जहाँ नॉन कॉग्निजेबल सेक्शंस है उसमें तो सहाफ़ियों के खिलाफ FIRs भी कटी हैं, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी विदिन महीनों या वीक्स आई हैं. तो ये जो एक डुप्लिसिटी है, ये हमें वी हैव टू कंसिडर कि हम बिल्कुल जो सिटीजन्स हम हैं उसके साथ शामिल हैं, हमारा पब्लिक सेक्टर हो, जो भी हो, लेकिन फिर यहाँ पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो हमें उलझाया जाता है, जो हमारी कैपेसिटी डिमिनिश की जाती है टू बी एबल टू केटर टू दिस, जो इसकी हरासमेंट है अंडर पीका, जो इसका गलत इस्तेमाल है, वो भी रुकना चाहिए. ठीक है, thank you for that. अच्छा, so we have just 5 minutes left. I want to come to 2 last questions. I'm going to open it up to whoever wants to answer. एक है अहमद हमदान से. उनका सवाल ये है कि अगर इतने रिसोर्स चैलेंजेस हैं और क्राइम भी, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, so is there an opportunity to assist FIA in cybercrime as a public-private partnership? Would that be something that would be open to the state at some point? I would like to answer that. अगस्त 2009 के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था. I was there in FI. मैं रिक्वेस्ट करूंगा एहसान साहब को तो उसको निकलवा लें. अगस्त 2009, बिफोर माय रिटायरमेंट. और उस नोटिफिकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया. उसकी एक मीटिंग भी हुई थी. उसमें सिविल साइड से 9-10 लोगों को बुलाया गया था. उसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, FIA के लोग थे. उसमें तय हुआ था 2009 के अंदर कि ये चीज़ें बढ़ेंगी, चूँकि इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को बनाना चाहिए अपने साथ. पैसा ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको अभी मैं हेड कर रहा हूँ, उसके रैप भी मौजूद थे उसके अंदर. और ये तय हुआ था कि सब मिल के इकट्ठे काम करें. मैं नेक्स्ट डे न्यूज़ अखबार की मेन खबर थी कि FI ज्वाइन हैंड प्राइवेट सेक्टर हो रही है. वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एहसान साहब को काइंडली मुझसे करवाएं नोटिस.
There is a sound notification valid है. पहली बात तो ये. अहमद साहब, मैं आपको सर ये जवाब देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे क्रिमिनल केसेस के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर एक पूरा रूल ऑफ बिजनेस होता है गवर्नमेंट का इस काम करने का. तो अगर कोई हम फ्रेमवर्क बना लें, जो जिस नोटिफिकेशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, फिर तो शायद जो आप सवाल कर रहे हैं कि हम कोई सहूलत फराहम कर सके. मतलब मेरे अपने ग्रुप में 100 के करीब ऐसे लोग हैं जो FIA की 10 मिनट में मदद कर देंगे. इंटरनेशनल लेवल पे लोग बैठे हैं, लेकिन उसका फ्रेमवर्क तो साइबर विंग ही तय करेगा ना कि वो कैसे उनको रेफर करेगा, क्या करेगा. तो यस, पॉइंट उनका बड़ा वैलिड है, होना चाहिए, लेकिन इसकी जो रूल ऑफ बिजनेस में इसकी प्रोविजन है वो गलबन अगस्त 2009 को नोटिफिकेशन आपकी मदद कर सकते. थैंक यू. ठीक है जी. जी एहसान साहब. जी, I think Amas have very rightly put it. There is a definitely a scope for public-private partnership, और उस पे को हम explore भी कर रहे हैं. Last time I think you were there in that meeting when where Habib साहब वो CPLC के थे, उनसे हम in touch हैं. अमार साहब को भी हमने एक दफ़ा इनवाइट किया, unfortunately we couldn't meet, और अभी निकत भी बता रही हैं कि इनसे भी हमारे ऑफिसर का राब्ता हुआ है. We are open to any such idea, and in fact we are working on that. वो प्रिवेंशन साइड पे भी है, अवेयरनेस रेजिंग पे भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर कोई हो सकता है वो भी है. ऑब्वियसली सर्टेन एरियाज जहाँ पे सिर्फ स्टेट का या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का रोल ही है. आई विल आल्सो लाइक टू ऐड कि हमने पहले जो बात की थी उस पर बात हो नहीं सकी थी कि देयर शुड बी सम कंसिडरेशन कि क्या पुलिस को भी दिया जा सकता है. डेफिनेटली हमको इसका मैकेनिज्म देखें, लेकिन इसमें I would put a note of caution as well कि ऑलरेडी जो हम यहाँ समझते हैं साइबर क्राइम बैठे हुए कि लाइक लोकल पुलिस, सोशल कल्चर जो हमारा कंटेक्स्ट है उसमें there is a tendency to use and misuse law and law enforcement for settling personal disputes. उसमें मैं समझता हूँ क्योंकि every person who is holding a phone is potential victim or offender of cyber crime. तो इसको भी हमें ज़रूर देखना चाहिए कि whenever we are suggesting some remedies, तो उसमें उसके जो potential implication है, क्योंकि unlike other crimes इसका तो कोई बड़ा फौरी है कि आपका फ़ोन ले लिया और आप में से वो चीज़ निकल गई. और another angle is कि जो हमारी normal discourse में हम किसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं या किसी महफिल में बैठे हैं या किसी ऐसी और gathering में we cut a joke or pass a remark or say something which is taken as normal, वो यहाँ आके digital platform पे it is always portrayed as a cyber crime. So we have to, I think the relevant people are sitting here, we have to think of some parameters, जैसे प्रिया ने कहा, certain terms which are defined in law. अब उन terms की तो बड़ी broad interpretation हो सकती है. So we have to safeguard the people who are being falsely accused as well, along with the victims. एक point I wanted to raise this issue as well कि इस पे भी चूँकि रेलिवेंट लोग हैं तो इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन किसी स्टेज पे होनी चाहिए. ठीक है जी. Well, thank you for that. So we've actually come to the end of the session. I have to say, I'd like to thank all of you. You've made a lot of spirited points, and I also appreciate how everyone took on board everyone else's comments, even if they had a difference of opinion. And I hope that all of you at some point are going to continue working together, because this is something that's really important. I'd just like to add that if you want to see some more publications, you can go to digitalrightsfoundation.pk. You can also go to bolobi.org. There are a number of publications around these issues as well. They're worth reading. If I can, I would like to... Oh, I see Nigat has a quick question. No, so, Jean, comment. Say that the cyber harassment helpline has gone 24/7, so anyone can reach out to us while, if they have any questions around or any complaints around cyber harassment. So the number is 0800-39393. We are also providing mental health counseling 7 days a week from 10 a.m. to 9 p.m. And cybercrime wing का number है साथ साथ बता दे, because हम हमेशा cybercrime wing का number भी अपने educational material में add करते हैं. I think that's 9911 if I'm yes. wrong. So please reach out to us. There is support available. Don't suffer in silence. And then there are like other issues जो कि हम लोग एक और नहज पे deal कर रहे हैं.
but I think we all need to work together to address all these complaints. I would just like to say that if you could, I think I'll take the liberty to go over by just 2-3 minutes. Everyone, if you have any final comments, please keep it under a minute, and then we'll close the session. So we'll start with Amar Saab. Okay, fine जी. मेरा ज़ाती ख्याल ये सो फर्स्ट को मैंने हैंडल कर लिया. जो मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ अगले 1-2 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो आपकी IoTs हैं, ये इतना डाटा जनरेट कर देगी कि आपके बेडरूम की चीजें कौन कर देगा. लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू, समझ आ रही है, क्योंकि अब इस चीज के अंदर IoTs आ गई हैं, आपके जो LCD है इसमें आ गई हैं, हर घर में 9-10 डिवाइसेस लगी हो जो डाटा ट्रांसमिट कर रही हो. मैं बहुत सीरियस इसको देख रहा हूँ. अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगी तो टारगेटेड अप्रोच होगी बकायदा. यकीन करें जो डीप फेक है ये जो मीडिया, ये मियाँ बीवी लड़ाई करवा देगा, ये प्रेसिडेंट्स की लड़ाई करा देगा, ये इदारों के सदरों की लड़ाई करवा देगा. आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मेरी आवाज होगी, डायलेक्ट तक मेरे होंगे, लफ्ज तक मेरे होंगे, लेकिन वो फेक हो. यानी खुदा ने खास तौर फजी के खिलाफ बोल रहा होगा बैठा हुआ, और फजी का ये देखो हमारे जाफी क्या कह रहा है, वो मुझे पता ही नहीं होगा. सच्ची बात है. इसके लिए मैं आखिर में फिर यही कहूंगा, मिलकर काम करने की जरूरत है. मेरा ख्याल है मैं साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने दफ्तर में मीटिंग बुला लें, आप सब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं कि, और मुल्क हमारा है, ये एक मुल्क है, ये इसके मसाइल हमारे हैं. तो जो अगले 1 साल में होने वाला है ना, AI बेस, मैं फिर कह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस डाटा एनालिटिक्स होंगे, छोटे छोटे डाटा सेट्स बनेंगे, वो लड़कियों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे. रिलेशनशिप, किसी की मंगनी की होनी है, यकीन करें वो मंगनी तोड़वा देगा, और वो ऐसी एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि वो दूसरा कहेगा यार क्या मसला है, दाल छुड़ाओ. तो इससे बचने का वाहिद तरीका है कि इस पर एनालाइज किया जाए, रिसर्च सेंटर कायम किया जाए, और ये काम शायद गवर्नमेंट अकेला ना कर सके, हमें इनके साथ काम करते हैं. थैंक यू. फरिया. नहीं, थैंक यू फसी और बाकी पैनलिस्ट का भी. एंड आई थिंक ये गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, एंगेजमेंट जारी रहनी चाहिए. जो इश्यूज हैं वो फ्लैग होते रहने चाहिए और रिजॉल्व भी करना चाहिए हमें, क्योंकि दोनों पहलू मौजूद हैं. जहाँ कोलैबोरेशन का है वो भी है, लेकिन जहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल है या विल और इंटेंट के इश्यूज हैं, और पाकिस्तानी सिटीजन्स के खिलाफ इसका जो गलत इस्तेमाल है वो हम उस कॉन्वर्सेशन से हटा के रख ही नहीं सकते. और ये इदारों को भी समझना चाहिए, स्टेट जो अपनी ट्रांजिशन होती रहती है, कि आप प्लीज़ इस कानून या कोई भी कवानीन को जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके खिलाफ इस तरह से टारगेट करके इस्तेमाल ना किया करें, बिकॉज ये हमारी जो दूसरी कैपेसिटी है जहाँ पे जेन्युइन लोगों के इश्यूज हैं वहाँ से डिट्रैक्ट करता है, और फिर हम बिल्कुल उस कैपेसिटी में रहते ही नहीं कि हम उन पे फोकस कर सकें. थैंक यू. निगित. I think I'll echo what Fariha said कि दोनों तरह के इश्यूज जो हैं उस पे हमें काम करते रहना चाहिए, कोलैबोरेटिव भी, बट जहाँ पे हमें मसले आते हैं वो भी आगे से हमें एक ओपन स्पेस मिले जिसमें हम उस पे बात कर सकें. दूसरा ये कि बाकी एक तो चीज़ ये कि आम तौर पे तो ख़वातीन को मतलब कुछ जो रिलीफ है वो मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स एक्टिविस्ट और वुमेन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ होते हैं जिस पे चाहे हम जितना फॉलो अप कर लें वो उस पे इतना ज़्यादा काम होता नज़र नहीं आता. तो एहसान साहब आपसे गुजारिश है कि काइंडली उन इश्यूज़ को भी प्लीज़ देखें, क्योंकि समटाइम्स लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डल जाती हैं जब लोग बहुत ज़्यादा हेट स्पीच ऑनलाइन करते हैं, और विजिबल लोग करते हैं ऑनलाइन. Ehsan Saab. I'll just say thank you to everybody, and you especially, for organizing this very important and productive event. Thank you. Well, I'd like to thank all of you once again. It was a pleasure listening to you speak, and it was an honor to have all of you, and also to see the way you engaged, the way you differed, and your points came out. That was something that was really enjoyable. So thank you, everyone, and I hope we hold another session soon and we can continue with some of the new issues that we've also been talking about, things that Ehsan Saab has raised, Fariha has raised, so we can go forward with that as well. So thank you, everyone, and thank you for all who've been watching as well. Thank you.